Hello everyone, today we are going to do our first lesson, our environment. Okay, our environment. Environment means the surrounding in which we live. There are many things around us and all things are consist of our environment, like we have trees, mountain, river, all consist of environment. जो भी हमारे आजू बाजू में है चीजें हैं, जैसे ट्रीज है, माउंटेन, रिवर, ये सब हमारा एनवायरमेंट है. यू कैन सी दोज पिक्चर्स. ये सब पिक्चर्स आप देख सकते हैं. एंड कैन यू टेल मी देयर नेम्स? यस, दिस इज द बैट, पॉट, दिस इज द थ्रेड, कप, बनाना, दिस इज द gooseberry, and this is the corn. And do you know where we get these things? Yes, we get these things from our environment. Okay, so take a look around us. This is our environment where we have tree, rivers, big rocks, mountains and everything. So this is our environment, and our environment consists of rocks, soil, there are rivers, streams, lakes, there is air, there are hill, mountain, jungles, fields, houses, road, and also barren land. Barren land मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, ऐसी बंजर जमीन, उसको कहते हैं barren lands. We also see many different animals around us. Different types of trees, bushes, climbers make our environment beautiful. Our environment makes these trees, river, everything makes our environment beautiful. We too are the part of this environment, and we too are the part of the environment. This is our environment, the surrounding in which we live. Okay, you can see the tree, river, mountain, this all consist. Okay, now let's see. In our environment we have stone, and this is the sparrow. Let's see the difference between the stone and the sparrow. Stone remains where it is. It doesn't change its place. It doesn't eat, and it doesn't grow bigger. And it doesn't have the babies either. Whereas the sparrow, it eats, it grows, it lays egg, and it has the baby, young ones. Okay? चिड़िया के बच्चे भी होते हैं, वो खाती भी है, बड़ी भी होती है, जबकि पत्थर बड़ा नहीं होता और वो हिलता भी नहीं है जगह से जब तक कि कोई उसको हिलाए नहीं. तो ये डिफरेंस क्यों है? वाई डू वी सी दीज डिफरेंसेस बिटवीन स्पैरो एंड द स्टोन? हमको ये डिफरेंस क्यों देखने मिलता है कि चिड़िया तो बड़ी हो रही है, ग्रो हो रही है, लेकिन जो स्टोन है वो ग्रो नहीं हो रहा है. लेट्स सी व्हाई. द स्पैरो is a living thing. The sparrow is a living thing, वो जिंदा है, and the stone is a non-living thing. Okay, so our environment is divided into, our surrounding is divided into living things and non-living things. Living things में we have animals and plants. Okay, animals and plants comes in living things. Plants to move from, for example, when a bird blooms into a flower, its petal open, but movement of the plants are not seen easily. Plants also need food. Animals को भी food लगता है, plants को भी food लगता है. Okay, so that's why they are living thing. अगर हम plants को भी बंद करके रख देंगे, पानी नहीं देंगे, तो वो मर जाएंगे. As an animal also. Okay, so this is the living thing divided into animals and plants. And non-living thing में हर वो चीज आ जाएगी जो ना बड़ी होती है, ना खाती है, जिसको ना खाने की जरूरत है, ना एयर की जरूरत है, ना वाटर की जरूरत है, जैसे स्टोन्स हो गए, माउंटेन्स हो गया, फिर लकड़ी, वुड है, वो है, और दूसरी बहुत सारी चीजें वो नॉन लिविंग थिंग्स में आती है. सो आवर सराउंडिंग इज डिवाइडेड इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स में कौन आता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, एनिमल्स को और प्लांट्स को फूड की जरूरत. Now let's see these pictures. These pictures are divided into non-living and non-living thing. Like if we have plants, animals, so these are living things. And which are the non-living things? ये cylinder देखिए, glass, ये कढ़ाई. These are non-living things. And plants, animals are living things. Okay? Because they need food, they grow. Now we have a relationship between all things in the environment. हर एक चीज जो एनवायरमेंट है वो अगर लिविंग है, नॉन लिविंग है, सब में एक रिलेशन है. ओके, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन. वाटर, एयर आर द पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट. ऑल लिविंग थिंग्स नीड
them. क्या लगता है लिविंग थिंग्स के लिए? वाटर एंड एयर. लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड. लिविंग थिंग्स नीड food. Okay, they get their food from the environment. And from where they get food? From environment. Whatever living things need to survive, they get from their environment. Birds build their nest. They need cotton, twigs, threads to build them. They get these things from the environment. हमको खाने पीने के फूड और एयर के सिवा दूसरी भी चीजें लगती है जो हमको कहाँ से मिलती है? एनवायरमेंट से. जैसे बर्ड्स को अगर नेस्ट बिल्ड करना है तो उसके लिए उनको क्या क्या लगेगा? कॉटन, ट्विग्स. These are the twigs. Okay, this is the cotton. So they get these things from the environment. These are the twigs, जो छोटी छोटी डंडियां होती है, and this is the cotton. How they build a nest? With the use of cotton, twigs and threads. Okay. We make things like mat, basket, paper from materials in our environment. We build houses using clay, stones, wood. These materials do we get from our environment. Whatever we need for our living, we get from the environment, because environment ही जो है हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है. जो भी चीजें हमको चाहिए वो हमको कहाँ से मिलती है? हमारे एनवायरमेंट से. वो क्ले हो, स्टोन हो, वुड हो घर बनाने के लिए, या हमारी जो बास्केट है या दूसरी कोई चीज है उसको बनाने के लिए भी जो मटेरियल चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो हमको हमारे एनवायरमेंट से मिलती है. द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड. स्कैटर्ड मीन्स फैल जाती है. हवा जो है वो कुछ प्लांट्स के सीड है वो फैला देती है एक जगह से दूसरी जगह से. एज अ रिजल्ट सीडलिंग्स ऑफ दोज प्लांट ग्रो इन न्यू प्लेसेस. दूसरी जगह पे वही प्लांट ग्रो होने लग जाता है. दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम द एनवायरमेंट. इसी तरीके से प्लांट्स को भी हेल्प मिलती है कि हवा जो है वो हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह को प्लांट करने में, ट्रीज को प्लांट करने में. लिविंग थिंग्स टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट. व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन एनवायरमेंट. हर एक लिविंग थिंग को जो भी चीज चाहिए वो उसको एनवायरमेंट से मिल जाती है. बहुत सारी चीजें लिविंग थिंग्स टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट. व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन एनवायरमेंट. इसका हमारे एनवायरमेंट पे क्या असर होता है? एनिमल्स लाइक वल्चर, फॉक्सेस ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. एनिमल्स लाइक फॉक्स एंड वल्चर ये क्या खाते हैं? फ्लैश ऑफ डेड एनिमल. मरे हुए जो जानवर होते हैं उनका फ्लैश यानी गोश्त खाते हैं. दस दे क्लीन द एनवायरमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर. इस तरीके से वो क्या करते हैं? एनवायरमेंट को हमारे क्लीन कर देते हैं. जो मरे हुए जानवर है वो वहां पड़ के सड़े हुए नहीं रहेंगे. इनको फॉक्स और वल्चर खा के जो है वो खत्म कर देंगे. तो इस तरीके से हमारा एनवायरमेंट क्या हो जाएगा? क्लीन भी हो जाएगा और इन एनिमल्स की पेट भी भर जाएगा, भूख भी मिट जाएगी. रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डीके यानी सड़ जाते हैं. रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल यानी जो मर जाते हैं जानवर, उनका जो बॉडी होती है वो सड़ने लगती है. दे मिक्स विद द सॉइल. और ये सॉइल में मिल जाते हैं यानी मिट्टी में वो सड़ी हुई जो बॉडी है वो मिल जाती है. लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज. और जो ट्रीज से पत्ते गिरते हैं दे टू रोट यानी सड़ते हैं. एंड गेट मिक्स इन द सॉइल यानी सॉइल में सड़ के वो मिक्स हो जाते हैं. दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल यानी वो सॉइल को, मिट्टी को बहुत अच्छा बना देते हैं जिससे बहुत अच्छे प्लांट्स ग्रो हो सकेंगे. फर्टाइल यानी अच्छा, बहुत अच्छा बना देते हैं जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं. प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम द फर्टाइल सॉइल. और जो हमारे प्लांट्स है उनको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? इस फर्टाइल सॉइल में, जो जहां पे जो मरे हुए जानवर है और जो ट्रीज के लीव्स है गिर के सूख कर वो सड़कर जो मिट्टी में मिल गए हैं, उससे हमारी सॉइल क्या हो जाती है? फर्टाइल यानी बहुत ही अच्छी हो जाती है, जो कि प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प करती है. Thus living things brings about changes in non-living things too. Thus living things brings about changes in non-living things too. इस तरीके से लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? चेंज लाते हैं नॉन लिविंग थिंग. यहाँ पे सॉइल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, राइट? लेकिन ये जो एनिमल्स है जो मर गए और वहां पे सड़ गए, मिट्टी में मिल गए और सॉइल फर्टाइल हो गई, तो इस तरीके से लिविंग थिंग्स ने नॉन लिविंग थिंग्स में भी एक चेंज लाया.
ओके, here we have do you know, क्या आप जानते हो? This is the ship. Okay, this is the ship. The ship's body is covered with wool. शिप की बॉडी पे जो है वो वुल होता है, ऊन होता है. द शिप फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ श्रब्स. और जो शिप होता है वो क्या खाता है? श्रब्स के जो है वो पत्ते खाता है. एज इट डज सो द सीड्स ऑफ सम श्रब्स कैन गेट कॉट इन इट्स वुल. और इस तरीके से जो इसके जो सीड्स होते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके वुल में चिपक गए हैं. ओके, श्रब्स गेट कॉट इन इट्स वुल. इसके वुल में कुछ आ गए हैं. व्हेन द शिप गोज समवेयर एल्स, और जब ये शिप दूसरी जगह जाएगा, दी सीड्स में फॉल ऑफ देयर, तो ये सीड्स जो है वो गिर जाएंगे दूसरी जगह पे. Thus the ship helps new seedlings of the shrub to grow in many different places. इस तरीके से ये शिप क्या कर रहा है? ये लिविंग थिंग है, लेकिन एक नॉन लिविंग जो बीज है वो अभी लिविंग थिंग नहीं है. ठीक है, उसको ग्रो होने में, उसको एक प्लांट बनने में, लिविंग थिंग बनने में वो हेल्प कर रहा है. क्योंकि इस तरीके से उसके वुल में जो है वो सीड्स कैच हो गए हैं. अब ये दूसरी जगह जाएगा, वहां ये गिर जाएंगे और वहां पे एक नया प्लांट आ जाएगा. तो इस तरीके से shrub to grow many different places. In this way, the sheep, which is an animal, and the shrub, which is a plant, help each other. इस तरीके से sheep और shrub जो है वो एक दूसरे की हेल्प कर रही है. ये जाके यहाँ पर खाएगा, इसकी जो बीज है, सीड्स है, वो इसके वुल पे लग जाएंगी और फिर ये दूसरी जगह जाएगा, वहां पे ये सीड्स गिर जाएंगी. अगेन द सेम प्लांट विल ग्रो इन सम अदर प्लेसेस. ओके, सो दिस वे in our environment we help each other. Okay, इस तरीके शीप ने ये श्रब दूसरी जगह ग्रो होने में हेल्प कर दिया. So we help each other. Okay, what we have learned in this lesson. What we have learned, आपने क्या सीखा इस लेसन से? There are many things in an environment. Some of them are living things and some are non-living things. Living things can move on their own. अपनी खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड. फूड हेल्प्स देम टू ग्रो. फूड लगता है लिविंग थिंग्स को, विच हेल्प देम टू ग्रो, उनको बढ़ने में मदद देता है. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स. लिविंग थिंग्स अपने ही तरीके के दूसरे जानवर पैदा करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं. लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग थिंग्स में दो चीजें हैं, प्लांट्स और एनिमल्स. बोथ आर living things. Okay, living things get all that they need from their environment. living things को जो भी चीजें चाहिए वो अपने environment से लेते हैं. living things brings about change in non-living things or too. और living things किस में change लाते हैं? non-living things में भी. Okay, जैसे हमने अभी soil के बारे में पढ़ा कि animals मर के soil में mix हो जाते हैं और फिर soil fertile हो जाती है. all things in environment depend upon each other. जैसे हमने अभी यहाँ पे शिप के बारे में पढ़ा कि हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, मतलब हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते. हमको जो खाना चाहिए वो एनवायरमेंट से मिलता है और एनवायरमेंट को जिस चीजें चाहिए वो हमसे मिलती है. सो दिस वाज आवर लेसन, आवर एनवायरमेंट. आई होप यू वुड लाइक इट. आपको समझ में भी आया होगा. अगर आपको ये लेसन ठीक लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू फॉर वॉचिंग.